Hello, my dear friends. I'm Professor Vayam Khan, and today we are going to discuss part 9 of unit number 3 of subject Materials and Metallurgy. And the unit name is Heat Treatment of Steels. So, in this heat treatment of steels, we have already covered various types of heat treatment processes of steels, and we have discussed how the material is made harder, the material is made softer, how its properties are modified by using heat treatment process. So in today's video we are going to discuss one more important topic, that is your hardenability. Okay, and how this hardenability of a steel is measured, what kind of procedure is used to test this hardenability. So the general process that is used, or the method of measuring hardenability of a steel, is by Jominy and quench test. So that Jominy and quench test we are going to discuss in this video, and hardenability we are going to see what is the definition of hardenability and what are the various aspects of this property of a steel. Okay, so let us begin. What do you mean by hardenability of steel? You might have heard about weldability, castability. That means a material is how easily it is weldable. So that is your weldability. Castability is how easily the material gets casted, or how it forms castings. So similarly, hardenability of steel is nothing but the ease with which a steel component or a steel piece can be hardened by means of martensitic transformation. Now when I am saying martensitic transformation, you might have remembered the process of heat treatment, or the method which is used to make steel harder, that is your martensitic transformation. Okay, so whenever we are doing the heat treatment, or whenever we are hardening the material, so in that specific procedure, the austenite which is formed above 727 degrees Celsius, or above the austenitic temperature, it gets converted into martensite by quenching the specimen in cold water or in oil. So after quenching, the austenite gets rapidly transformed to martensite, which is a hard and you can say a brittle phase of your steel. Okay, so this martensite transformation happens because of this quenching process. Now this transformation makes steel harder. That means the steel will be able to bear a lot of load, it will be wear resistant, it will be scratch resistant, it will be notch resistant, and various properties that are needed from a hard steel are now equipped with this steel. Okay, now this property of steel which makes them harder is nothing but your hardenability. एक स्टील को कितने आसानी से हार्ड बनाया जा सकता है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं हार्डनेबिलिटी ऑफ स्टील. ओके, ये जो हार्डनेबिलिटी है, इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, जैसे कि हमारा कार्बन कंपोजिशन है. अगर हम हार्डनेस बढ़ाना चाह रहे हैं, तो हमको पता है, हमने ये स्टडी किया है, हमने देखा है कि अगर कार्बन का अमाउंट ज़्यादा रहेगा तो उतना आसानी से मटेरियल क्या हो सकता है, हार्ड बन सकता है. तो जितना आसानी से इस मटेरियल को हार्ड बनाया जा सकता है, उस एबिलिटी को, उस स्टील के एबिलिटी को, उस मटेरियल के एबिलिटी को क्या बोलते हैं, हार्डन एबिलिटी. ओके, और इसको जनरली इज कॉमनली मेजर्ड बाय जॉमिनी एंड क्वेंच टेस्ट. ओके, सो हमको ये जॉमिनी एंड क्वेंच टेस्ट देखना है. इस जॉमिनी एंड क्वेंच टेस्ट में क्या रहता है, कैसे ये प्रोसेस की जाती है, या कैसे इसमें हार्डनेबिलिटी मेजर की जाती है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ. सो जॉमिनी एंड क्वेंच टेस्ट, इसमें एक स्पेसिमन है. देयर इज़ वन स्पेसिमन विच इज़ अ सिलिंड्रिकल शेप
rod or generally a cylindrical shape component, and its approximate diameter is 25 mm. Sometimes it is taken as 25.4 mm, which comes around 1 inch in diameter. Then the length of this specimen is about 100 mm. Sometimes it is taken as 102 mm, which comes around 4 inches. And this particular specimen has a machined shoulder, which means it has a circular ring at the top. Okay, so it has a shoulder, machined shoulder. Now this specific specimen will be used to measure the hardenability of this type of steel. Suppose this is a type of steel, so there are various nomenclatures of steel. So sometimes it is required to measure the hardenability of steels. Okay, सो उस स्पेसिमन की हार्डनेस कितनी है, कैसा वो हार्ड होता है, कितने जल्दी हार्ड होता है, वगैरह वगैरह चीज़ें ये कई बार एप्लीकेशंस में ज़रूरी रहती है, कई बार इंडस्ट्रीज़ को ज़रूरी रहती है. सो इसलिए इस स्पेसिमन की हार्डनेस क्या की जाती है, टेस्ट की जाती है. अलग अलग टाइप्स के स्टील है उनके लिए ये यूज़ की जाएगी. ओके, तो ये स्पेसिमन है. इस स्पेसिमन को क्या किया जाता है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर. तो प्रोसीजर इज़ लाइक दिस स्पेसिमन इज़ कम्प्लीटली हीटेड अबव द ऑस्टेनाइटिक टेम्परेचर. जो ऑस्टेनाइटिक टेम्परेचर है 727 प्लस 30 to 50 डिग्री सेल्सियस, तकरीबन 750 से 780 डिग्री सेल्सियस तक इसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है यूनिफॉर्मली. इस यूनिफॉर्म हीटिंग से क्या होता है कि इस स्पेसिमन में हमारे ऑस्टेनाइट का फॉर्मेशन होता है. ऑस्टेनाइट फॉर्मेशन जितना अच्छे से होगा, जितना ज़्यादा ऑस्टेनाइट फॉर्म होगा, उतना ज़्यादा ऑस्टेनाइट क्वेंचिंग के बाद कन्वर्ट होगा मार्टेनसाइट में. सो जो हमारा ऑस्टेनाइट है, गैमा ऑस्टेनाइट जिसको हम बोलते हैं, यस, दिस ऑस्टेनाइट गेट्स कन्वर्टेड टू मार्टेनसाइट बाय मीन्स ऑफ क्वेंचिंग. जो क्वेंचिंग रहती है वो रैपिड कूलिंग उसको हम बोलते हैं. ओके, इस क्वेंचिंग प्रोसेस के बाद में जो भी स्टील है ऑस्टेनाइट से उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है मार्टेनसाइट में. गैमा ऑस्टेनाइट रहता है, गैमा ऑस्टेनाइट से हमारा मार्टेनसाइट फॉर्म होता है. राइट. सो जितना ज़्यादा ये हमारे पास में रॉ मटेरियल रहेगा मार्टेनसाइट बनाने का, विच इज़ कॉल्ड एज ऑस्टेनाइट, तो उतना ज़्यादा मार्टेनसाइट हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं. तो इसीलिए हमको 727 से हम कंसिडर करते हैं प्लस 30 से 50 डिग्री सेल्सियस, 30 से 50 डिग्री सेल्सियस तक हम क्या करते हैं, उसको ज़्यादा हीट करते हैं. सो 727 से 30 अगर हम पकड़े तो तकरीबन 750 होता है, और 50 अगर पकड़े तो तकरीबन 780 होता है. तो अराउंड 750 to 780 डिग्री सेल्सियस तक इस स्पेसिमन को जो है हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, ताकि इसके पूरे स्ट्रक्चर में, पूरे एरिया में, हर जगह पर गैमा ऑस्टेनाइट अच्छे से फॉर्म हो जाए. ओके, अब ये स्पेसिमन जो है, ये स्पेसिमन हमारा जो भी हीटर रहेगा या जो भी हमारा फर्नेस रहेगा, इस फर्नेस से निकालकर एक क्वेंचिंग का एक स्पेशल इक्विपमेंट रहता है जो जॉमिनी एंड क्वेंच टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इस इक्विपमेंट में क्या किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्वेंचिंग जिग, जिसको बोला जाता है. इस क्वेंचिंग जिग में क्या करते हैं, उसको लगाते हैं. स्पेसिमन को निकाला जाता है फर्नेस से और इस क्वेंचिंग जिग में लगाया जाता है. इस क्वेंचिंग जिग में क्या रहता है कि स्पेसिमन के डायमीटर का एक होल रहता है, और ये शोल्डर जो है, ये शोल्डर वहाँ पर फिक्स होगा, ऐसा उसके अंदर क्या रहता है, अरेंजमेंट रहता है. इसका जो क्वेंचिंग जिग है उसका भी मैं आपको फोटोग्राफ दिखा दूंगा नेक्स्ट स्लाइड में. अब इसके बाद क्या किया जाता है, सो इस माउंटिंग फिक्सचर में उसको लगाया जाएगा हमारे स्पेसिमन को. इस स्पेसिमन के नीचे एक पाइप रहता है, इट्स अराउंड 1/2 इंच उसका डायमीटर रहता है, और इन दोनों के बीच का भी जो डिस्टेंस है, इट इज़ अराउंड 1/2 इंच, मतलब आधे इंच का डिस्टेंस दोनों के बीच में रहता है, और उसका डायमीटर भी 1/2 इंच का रहता है. और इस पाइप से हम क्या करेंगे कि इस स्पेसिमन को क्वेंच करेंगे. क्वेंचिंग करना मतलब क्या, रैपिडली कूल करना. तो हम क्या करेंगे, इस पाइप से एक रूम टेम्परेचर वाला पानी इस स्पेसिमन के इस एंड पर, बॉटम एंड पर स्प्रे करेंगे. सो इसीलिए इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है जॉमिनी एंड क्वेंच. मतलब जो एंड है उसको क्या किया जा रहा है, यहाँ पर क्वेंच किया जा रहा है. सो ये रूम टेम्परेचर वाला पानी इसके ऊपर स्प्रे किया जाएगा, जिसकी वजह से जो स्पेसिमन है उसका कूलिंग यहाँ से स्टार्ट होगा.
सो ये जो एंड है, ये एंड पहले कूल होगा, फिर स्लोली स्लोली जो कूलिंग है वो हमारे दूसरे एंड तक पहुंचेगा, जिस वजह से क्या होता है कि इस एंड पर कूलिंग जल्दी होने की वजह से ये एंड रैपिडली क्वेंच होता है और ये एंड स्लोली क्वेंच होते जाते हैं। सो जैसे जैसे हम इस क्वेंच्ड एंड से नॉन क्वेंच एंड की तरफ बढ़ेंगे, जो हमारा स्टील का हार्डनेस है वो भी क्या होगा, वेरी होगा। बट ऑब्वियस है कि जहाँ पर क्वेंचिंग बहुत अच्छे से हुआ है वहाँ पर स्टील जो है वो क्या रहेगा, ज़्यादा हार्ड रहेगा। वेयर एज जहाँ पर क्वेंचिंग कम हुआ है उस एंड पर स्टील कैसा रहेगा, बट ऑब्वियस चीज़ है, सॉफ्ट रहेगा या थोड़ा सा कम हार्ड रहेगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। सो ये टोटल ओवरऑल प्रोसेस है। इस ओवरऑल प्रोसेस में ये हमारे को सेटअप देखने मिलता है। इस सेटअप के अंदर यहाँ पर इस तरीके से हमारा स्पेसिमन लगाया जाएगा जिसको मशीन शोल्डर रहेगा, और इस पानी को वॉल को ओपन करके 1/2 इंच के वॉल पाइप के थ्रू हम क्या करेंगे, पानी इसके ऊपर स्प्रे करेंगे। सो बहुत सारा पानी जो है वो इस एंड पर, या जो हमारा स्पेसिमन अगर मैं इस तरीके से निकालूँ तो पानी बहुत सारा इस एंड पर क्या होगा, अप्लाई होगा। साथ ही साथ में जो बाहरी एरिया है वहाँ से भी कुछ अमाउंट में पानी जो है इन साइड की वॉल्स पर या साइड के डायमीटर्स पर क्या होगा, पानी स्पेसिमन के ऊपर गिरेगा। तो ये जो पोर्शन है ये इट विल गेट प्रॉपर्ली क्वेंच्ड, ये जो एंड है। बट ऊपर वाला एंड जो है, जैसे जैसे ये एंड ठंडा होगा वैसे वैसे हीट क्या होती जाएगी, हमारी शेयर होती जाएगी। आपको पता है हीट जो हाई टेम्परेचर एरिया है वहाँ से लो टेम्परेचर एरिया की तरफ बढ़ती है, तो उसी तरीके से यहाँ की जो हीट है वो इस डायरेक्शन में मूव होगी और ये भी एरिया क्या होते जाएगा, स्लोली स्लोली कूल होगा। बट दिस एरिया इज गोइंग टू गेट कूल्ड इन डिफरेंट कूलिंग रेट, बाय डिफरेंट कूलिंग रेट। कम कूल होगा या कम रेट से कूल होगा, इसलिए इस साइड में जो हमारा हार्डनेस है वो कम रहेगा और इस साइड में हार्डनेस ज़्यादा रहेगा। सो ये हार्डनेस कम ज़्यादा जो रह रही है इसको हम मेजर करते हैं हमारे हार्डनेस टेस्टर के ऊपर। अब हार्डनेस टेस्टर के ऊपर हम कैसा मेजर करते हैं, तो उसका एक डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमारा रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर या ब्रेनिल हार्डनेस टेस्टर कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, और इसके अंदर जॉमिनी स्पेसिमन जो है ये पूरा रॉड जो है वो लिया जाएगा और इस रॉड पे ऐसे अलग अलग मार्किंग की जाएगी, स्पॉट्स मार्क करते हैं इसके थ्रू आउट द लेंथ। ये मार्किंग रहेगी, जैसे कि ये मार्किंग है, सो ये मार्किंग जहाँ पर रहेगी वहाँ से दूसरा जो मार्किंग है इट विल एक अराउंड 1/16 इंच, 1/16 इंच पर क्या किया जाता है, एक मार्किंग किया जाता है। 1/16 इंच को अगर मैं mm में बताऊँ आपको तो इट विल बी अराउंड 1.5 mm। सो हर एक 1.5 mm या 2 mm तक के डिस्टेंस पर क्या किया जाता है, कुछ इस तरीके से मार्किंग किया जाता है। ओके, सो ये जो मार्किंग है ये हम पूरे लेंथ पे करेंगे, तो जितने भी मार्किंग्स रहेंगे वहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हमारी हार्डनेस टेस्ट करने वाले हैं। आप क्या करते हो, हार्डनेस टेस्टर के अंदर एक स्पेसिमन है समझो इस तरीके से, उसका अगर फ्रंट व्यू है और आपको यहाँ पर हार्डनेस चेक करना है, तो हम क्या करते हैं, हमारा इंडेंटर जो रहता है, इंडेंटर यहाँ पर इंसर्ट किया जाता है, बराबर है। जो भी रहेगा, डायमंड रहेगा, राउंड शेप रहेगा, जो भी रहेगा, जिसका भी रहेगा, उसको यहाँ पर इंसर्ट किया जाता है और यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसकी हार्डनेस मेजर करते हैं, बराबर। उसी तरीके से इस स्पेसिमन को उस हार्डनेस टेस्टर के ऊपर रखा जाएगा और इन पॉइंट्स के ऊपर हार्डनेस क्या की जाएगी, मेजर की जाएगी, उनकी वैल्यूज़ लिखी जाएगी। अब यहाँ पर आप एक ग्राफ देख रहे होगे, स्लोप कुछ इस तरीके से आपको नज़र आ रहा होगा। सो दिस शोज द वेरिएशन इन हार्डनेस with respect to the distance of with respect to the distance from the quenched end। मतलब जो हमारा quenched end है, ये वाला जो एंड रहेगा, ये एंड हमारा quenched end रहेगा जहाँ पर हमने पानी डायरेक्टली अप्लाई किया है, whereas ये वाला unquenched रहेगा। सो इस quenched end से unquenched end तक जो हार्डनेस में वेरिएशन आ रहा है वो क्या कर रहे हैं, हम इस हार्डनेस टेस्ट में मेजर कर रहे हैं। सो यहाँ पर एक वैल्यू आएगी, यहाँ पर दूसरी आएगी, यहाँ पर तीसरी आएगी। तो जैसे मैंने बताया कि बट ऑब्वियस है कि इस एंड पर हार्डनेस ज़्यादा रहेगी, इस एंड पर हार्डनेस कम रहेगी। सो हार्डनेस में वेरिएशन कुछ इस तरीके से आता है, पहले हमको ज़्यादा देखने मिलती है, फिर कम होते जाती है, फिर और कम होते जाती है, एंड इट गोज़ लाइक दिस। सो दिस इज़ हाउ योर जॉमिनी एंड क्वेंच टेस्ट इज़ परफॉर्म्ड, हाउ इट्स हार्डनेस इज़ मेजर्ड। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसके हार्डनेस में वेरिएशन मेजर करते हैं। सो जो हार्डनेस है वो तकरीबन RC स्केल पर, अगर कोई भी रॉकवेल स्केल हम यूज़ कर रहे हैं, कोई भी
हार्डनेस टेस्टर यूज़ कर रहे हैं, उस पर अराउंड 60 to 80 RC से फिर लेके वो 20 RC तक डिक्रीज़ होते जाती है। सो यहाँ पर अगर 60 है, यहाँ पर अगर मेरा 60 to 80 अगर हार्डनेस है तो यहाँ पर उससे कम रहेगा, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम, और ये डिक्रीज़ होते जाएगा। सो जो वेरिएशन है हार्डनेस का विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम कोइंसिडेंट, वो उसका ग्राफ जो है हार्डनेस वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ के ऊपर कुछ इस तरीके से हमको नज़र आता है। सो दिस इज़ हाउ योर जॉमिनी एंड कोइंस टेस्ट इज़ परफॉर्म्ड। और ये हार्डनेस का इस्तेमाल हम फिर हमारे स्पेसिमन के रिक्वायर्ड एप्लीकेशन के हिसाब से क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। मतलब आपको पता है आपको कितना वहाँ पर कूलिंग देना है, कितने देर का कूलिंग देना है, वगैरह वगैरह सब चीज़ें इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों, दिस इज़ योर जॉमिनी एंड कोइंस टेस्ट. So this was all about heat treatment of steels. We are done with heat treatment of steels. In next video we'll begin unit number 4, that is steel and cast iron. जो स्टील और कास्ट आयन है उसका डेसिग्नेशन क्या है, कैसा रहता है, सब चीज़ें उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. टिल देन प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड कीप लर्निंग. थैंक यू.